सर एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बाद तो कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है ना, देखते जा क्वेश्चन का। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। ओके, 459 divided by 1000, this equals what? 0.459। मैसेज करना बेटा आंसर को। जिया करेक्ट आंसर, दिव्य करेक्ट, यशिता करेक्ट है, चेतना करेक्ट आंसर। सो नाउ ये करेक्ट आंसर इज 0.459। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13/15 प्लस 2/15 equal to what? Write your answer in message. जीनिशा करेक्ट आंसर, जीनिशा, देशना, पार्श्व, ऋषभ सभी का करेक्ट आंसर है। ओके जीनिशा, मेरा जिया करेक्ट आंसर, सभी का करेक्ट, मेरा सभी का करेक्ट। जीनिशा एक्सप्लेन करो, जीनिशा। yes 13 plus 2 is equals to 15. Actually, it is a life fraction in which denominators are same. So life fraction means 13 plus 2 divided by 15. So this equals. Okay, now next question is related to definition of rational number. Okay, so Excuse me, sir. define rational number. Rational number. Good morning, sir. Good morning. It's a real number. Yes, beta. It's include all the real number like integers, fractions, whole number, natural number. we have to answer in chat. Yes, chat. Write your answer in message. Okay. आदि जैन मैसेज नहीं कर रहे हो, आदि जैन आंसर करो। आदि अनम्यूट करो, आदि। Yes, sir. रैशनल नंबर बेटा बता पाओगे क्या? सर बता रहा हूँ। Excuse me, sir. ओके नाउ Excuse me, sir. यस सर आपकी स्क्रीन पूरी ब्लैक आ रही है। मौलिक करेक्ट आंसर। क्लियर है। Okay, now so look here. Define rational number means it is a ratio of. It is a ratio of two integers. Two integers but denominator so not equal to 0. For example 3/4. So 3 is a positive integer and 4 is also a positive. Second example is -3/4. So -3/4 here 3 is positive or negative integer? Negative. And that is also negative integer and 4 is also Positive integer. Example is 0/4. So 0 whether it is considered as an integer or not?
Reply. No, sir. Zero. No, sir. Zero is an integer or not? Yes. Sir, it's an No, sir. No, integer. sir. Right. Zero is also integer. Integer means 0, 1, 2. 2, 3. -1, -2, -. देखो ये सारे के सारे क्या है आपका इंटीजर्स है 0 1 2 3 मतलब मींस आपका पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ऑल आर कंसीडर्ड एज ए इंटीजर Integer. so 0 it is also an integer it is also सर 0 को क्या बोलेंगे फिर नेगेटिव पॉजिटिव neither in negative nor positive now and it is a positive integer it is a positive इंटीजर अब देखो बेटा आप 0 को किसी भी नंबर से आप जब डिवाइड करोगे तो व्हाट विल रिजल्ट 0.4 मींस व्हाट 0 0 it means 0 it is also an integer also a rational number क्यों बेटा but sir 0 should not come in denominator. now first look here okay 0.4 means 0 is a positive 0 is an integer and 4 is an integer so it is a ratio of integer it means it is a rational number 0.4 is a rational number but we know that 0.4 will equal to 0 so 0 is also a rational number now next example is look here next example is 4 upon 0 my question is whether it is considered as a rational number Not defined. Four. No sir. Look here. 4 is also an integer. It is also an integer and 0 is also an integer. 0 is also an integer. But why 4 upon 0 is not considered as a... Can I tell? Okay, yes. Sir, because if we divide it, the answer will be undefined. No. Now look, what is the definition of rational number? Rational number, it is the ratio of two integers, but denominator should not equal to 0. Denominator should not equal to 0. It means the denominator is 0. That's why it is not considered as a rational number. Is it clear for all? Yes, sir. आपका रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा. ये आपका डेफिनेशन. It is a ratio of two where denominator is not equal to 0. Yes, Sublunia, any problem? Sublu, okay. Adi Jain. Yes, sir. Any problem? Any doubt? No, sir. Okay, now next question is. So next question is. Which one is not a rational number? Question is which one is not a rational number? Sir, we have to answer in chat. You have to write your answer in chat. Okay, now so option A 0, option B 0 upon 1, option C 1 upon 0, and option D 5 minus 5 upon 4. So which one is not a rational number? A, B, C, D. Parse correct answer. Divya correct answer. Desna correct answer. सभी का correct answer है. Okay, now we need justification that why 1 upon 0 is not considered as a rational number. So, Maulik, would you like to explain? Maulik, wrong answer है Maulik.
Sir, I have sent once again. हाँ बेटा, आप तीनों ए बी और सी क्यों लिखे हो? आपको तो एक ऑप्शन लिखना है ना मौलिक। ओके, एनीवन वांट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? Sir, can I? Sir, can I? चेतना, चेतना। Yes, sir. So option C is correct. Okay, but we need justification. Why? Sir, One, because it's a rule that in a denominator 0 should not become. yes, very good. We know that in a rational number, denominator will not equal to 0. And option C, we see that denominator is 0. That's why 1 upon 0 is not considered as a rational number. So, correct option is C. Now, next question is, question P upon Q is a rational number where P equal to and Q equal to. Now P and Q is not equal to. So fill in the blank. सर हमें yes or no लिखना है। आंसर लिख, मैसेज करो बेटा चैट में। P upon Q is a rational number where P means what and Q is not equal to what. P क्या है आपका और Q किसके इक्वल नहीं होगा? मैसेज करो। दिव्य कोठारी, बेटा P की वैल्यू सिर्फ 1 होगी क्या? आपका सेकंड आंसर करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट करेक्ट नहीं है। सर मेरा सही है। पार्स करेक्ट आंसर, यस पार्स। मेरा सही है क्या? सर मेरा सही है। नहीं है, लेकिन पार्स का फर्स्ट करेक्ट आया है। सो पार्स एक्सप्लेन करो। पार्स है सर रेशनल नंबर की डेफिनेशन है p is a integer, so sir p is equal to an integer. Yes, very good. So according to definition we know that P upon Q is an integer. So rational number is the ratio of two integers. So P, this is first integer, means any integer, and Q is not equal to 0. 0. C is not equal to 0. तो ये करेक्ट आंसर है। आप में से किसी का आंसर आ रहा था P के मतलब क्या लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, सब बताओ। 1 2 4 5 क्या सिर्फ यही रेशनल नंबर है? 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। सर मैंने नेचुरल नंबर लिखा है। ठीक है बेटा, ठीक है लिखो, लेकिन आपसे पहले पास का आया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज simplest form, you have to write the given fraction in simplest form. So first one is 64 upon 32. Okay. Second one is 81 upon 27. First solve this one. यशिता करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और भी सॉल्व करो बेटा। चेतना, देशना, मौलिक, चेतना करेक्ट आंसर। दिव्यांश लुनिया करेक्ट है। ओके, मौलिक एक्सप्लेन करो। मौलिक जय। Yes, sir. फास्ट। The simplest form 32 into 132 or 32 to the 64. Very good. So 64 can be written as 2 into 32. 32 to the 64 and this. So this one is cancelled. So 2 upon 1.
तो क्या बोलते हैं, सफा चार्ट बोलते हैं ना Yes, sir. सीधा। नहीं नहीं है, कौन है ये? वही ठीक है आता है। ना। जान क्या जैन। सर वेदांत जैन की घर से आवाज आ रही है। Okay, now next solve for 81 Sir, upon. next है Yes. 27 into 1, 27 and 27 into 3, 81. 27 3 is 81 and 27 on the 27. So this one is cancelled. Yes, sir. And 3 upon 1. 3 upon 1. ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है बेटा. Now next question is related to area of triangle, rectangle and so now next question, area of triangle. Now right here, what is the area of rectangle? Sorry, area of triangle. सर मेरा सही है? Yes, Yasita, correct answer. जिया wrong answer है बेटा. आपको एरिया लिखना, पेरीमीटर लिखे हो. Sir, मेरा सही है. Yes, Maulik, correct answer. Divya, correct answer. Okay, now Divya, correct answer. Now second है आपका area of rectangle. Maulik, correct answer. जिया, ऋषभ. Sir, may I say? Okay, आदि. Yes, आदि जैन. 2 pi r. Wrong answer, आदि जैन. Now next question is area of parallelogram. सर मेरा आंसर सही है? सही था. आप फिर से बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. Sir, मैंने भेज दिया. करो. धैर्य रॉन्ग आंसर. यशिता, चेतना, करेक्ट आंसर. Sir, मेरा. फिर से लिखो. देशना, करेक्ट. मौलिक. ऋषभ, करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर बेटा. नाउ लुक हियर. अब आप देखो फर्स्ट क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस सपोज दैट ये आपका क्या ट्रायंगल है, ये बेस, ये क्या आपका हो गया हाइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हो गया. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे आओ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आप क्या करो, ये फिगर, ये रेक्टेंगल का फिगर है. नाउ वन डायगोनल इज डिवाइडेड into two equal parts. Rectangle is divided into two equal parts. So ये आपका ट्रायंगल 1 हो गया. ये आपका ट्रायंगल 1 और ये आपके लिए ट्रायंगल 2. अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का, ट्रायंगल 1 का एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा आपका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ये आपका क्या है, बेस. ये आपका क्या हो गया, हाइट. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का एरिया क्या होगा आपका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अब आप इसे ऐड करो. ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 को जब आप ऐड करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2, तो ट्रायंगल 1 का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है. दिस इक्वल्स हाफ इनटू बेस इनटू हाइट प्लस ट्रायंगल 2 के एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ये आपका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो बेस इनटू हाइट आपका also हाफ आपका. सो दिस इक्वल्स 2 into 1/2 into बेस इनटू हाइट. 2 कैंसिल हो गया. ये आपका है बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा आपका, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इनटू हाइट, अदरवाइज
लेंथ इनटू ब्रेथ। और सिमिलरली यही प्रोसेस आपका पैरेललोग्राम में होगा। पैरेललोग्राम के लिए देखो आपका ये फिगर हो गया, पैरेललोग्राम में ये डायगोनल है, और डायगोनल के लिए ये आपका क्या होगा, हाइट। ये क्या होगा, हाइट। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा आपका हाफ बेस इनटू हाइट। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए ये आपका हाइट होगा, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये टोटल एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट प्लस हाफ into base into height. So half and half will become 1, and base into height means base into height. So ये आपका होगा base into height. किसी को कोई डाउट है पूछो बेटा इसमें, एनी डाउट? सर वो नो आपका सर और एक्स्ट्रा वो सर थोड़ा साइड होना है, स्क्रीनशॉट लेना है। सर वो अपने साइड में पैरेललोग्राम में ऐसा दो चार ट्रायंगल क्यों बना दिए? चार ट्रायंगल नहीं बेटा, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हाँ ये आपका वन ट्रायंगल और ये आपका अदर ट्रायंगल। तो डायगोनल सर वो ऐसी खड़ी लाइन क्यों बना है? रेगुलर हाइट है, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो बेस इनटू हाइट होता है। ये लाइन एक्चुअली हाइट के लिए शो हो रहा है। तो आपका फर्स्ट ट्रायंगल का आपका बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, और अगेन ये हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो हाफ प्लस हाफ is equals to 1. so this equals base into height. Clear for all? सर Yes. एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना? वो पेरीमीटर होता है सोलोनिया, वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into L plus B. Now next question is सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम L into B भी हो सकता है ना? नहीं बेटा, वो हाइट ही होगा, बेस इनटू हाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ax square plus bx plus c has how many terms? How many terms? Wait. 4x plus 5y plus 10z. सर पहले वाला आंसर मत देखना ना, वो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था। So do you know what is the term in algebraic expression? सर मेरा हो गया। चेतना, यशिता, देशना, करेक्ट आंसर, सभी का करेक्ट है। सर पहले क्वेश्चन में भी आंसर सर मैंने भी भेज दिया है। मौलिक ट्राइनोमियल तो आप सही लिखो, लेकिन ट्राइनोमियल मींस देयर आर 3 terms. So how many terms? Your answer is 3 terms. Now next question is 4x plus 5x plus 10x plus 20 has how many terms? आंसर करो। सर करेक्ट है। मौलिक करेक्ट है। पास आंसर करो। मौलिक, दिव्य, देशना, सभी का रॉन्ग आंसर है। सर मेरा दिव्यांश लूनिया का करेक्ट आंसर है। पास रॉन्ग आंसर। दिव्यांश सर मेरा करेक्ट है। यस सर। बेटा सिर्फ आपका ही करेक्ट आंसर है। दिव्यांश लूनिया एक्सप्लेन करो। यस सर। सर जो 4x है, 5x और 10x है वो तो एक ही टर्म हो जाएगा। ओके, 4x plus 5x plus 10x, this is a like term. This is a like term. Like term 19x. variables are same. So variables are same means 10 plus 5 15, 15 plus 4 19. So this equals 19x plus ये आपका आ गया 20. ये आपका क्या आ गया 20. So now 19x plus 20. So how many terms दिव्यांश लूनिया? 2 terms. Sir, can I Binomial. Sir, 2 terms. 2 terms. So सभी का Binomial. सिर्फ दिव्यांश का करेक्ट आंसर था। ध्यान से क्वेश्चन देखना, फिर से मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको। सर मैं भेज ही रहा था।
अब मैसेज नहीं करना, आप क्वेश्चन चेंज कर लो। ओके, अब नया क्वेश्चन को मैसेज कर लो। फाइव एक्स टू द पावर 0 प्लस 10y टू द पावर 0 प्लस 13z टू द पावर 0, हाउ मेनी टर्म्स? रॉन्ग आंसर है दिव्य और दिव्यांश का रॉन्ग आंसर, चेतना रॉन्ग आंसर, सर समझाओ ना, समझ नहीं आ रहा है। मौलिक करेक्ट आंसर, पार्स करेक्ट आंसर, और चेतना का करेक्ट, शुभ लोनिया का रॉन्ग है। ओके, अब मैसेज नहीं करो बेटा, फर्स्ट करेक्ट आंसर आया मौलिक, एक्सप्लेन करो। यस सर। एक्सप्लेन करो सर सबकी पावर 0 है, सबकी पावर 0 है तो मिला के वो 1 ही होगा। 1 होगा। सो आप एक्सप्लेन तो करो, ये क्या आ रहा है आपका, टर्म तो बताओ। सर 5x² ये हो जाएगा 1। 5x सर टर्म प्लस तो 3 है ना, 10y टू द पावर 1, 10 into 1। पार्स जो है एक्सप्लेन करो, पार्स। सर टर्म्स तो 3 है ना। पहले देखो सॉल्व तो पार्श्व क्लास में नहीं हो क्या? सर मेरे को सर पार्श्व है, समझ आ गया। फिर 13 into 1 हो जाएगा, प्लस 13 into 1 प्लस 13 into 1। देखो जो आप लोग कह रहे हैं टर्म 3 है, तो टर्म को पहले आपको वेरिएबल को देखना है ना कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक्चुअली सभी में x, y और z में लिख रहा हूं, लेकिन उसका एक्सपोनेंट क्या 1 है, तो मैं इसे ऐसे लिखा हूं। एक्चुअली आपका टर्म क्या है, 15 प्लस 10 प्लस 13, ये आपका टर्म था। इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, तो ऐसा लिखा 15 into 1 प्लस 10 into 1 प्लस 13 into 1। नाउ नेक्स्ट मैं फिर से मॉडिफाई कर रहा हूं, ये आपका होगा 15 into 1 को मैं लिख सकता हूं x to the power 0 प्लस 1, ये 10 into 1 है तो मैं इसे लिख सकता हूं y to the power 0। अगेन ये आपका 13 है, 1 को मैं लिख सकता हूं z to the power 0। अभी आपको लग रहा है ये वेरिएबल, देयर आर 3 वेरिएबल, बट एक्चुअली देयर आर नो एनी वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज़ x to the power equals 1, y to the power equals 1, z to the power equals 1, और ये सारे के सारे आपके नंबर्स है। 15 प्लस 10 प्लस 13, ये लाइक टर्म है ना, कोई वेरिएबल नहीं है। तो यस सर, 13 को जब आप तो 5 प्लस 10 प्लस 13 कर देंगे। सर बट टर्म तो सेम है, टर्म तो 3 है ना। टर्म्स बेटा, टर्म्स अगर डिफरेंट वेरिएबल होगा तब वो टर्म काउंट करेगा। अभी आप देखो यहाँ टर्म कितने आ रहे हैं, 5 प्लस 1 मींस 5, 10 प्लस 1 ये प्लस 10, ये 10 प्लस ये आपका 13 28 8 1 प्लस 1 28। अब बताइए हाउ मेनी टर्म है 1। जब आप जा रहे हो तो कितने टर्म आया, एक्चुअली 1 टर्म है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 1 टर्म। क्लियर हुआ? यस सर। सभी का क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? नो सर कोई डाउट नहीं। जिया, आदि, चेतना, देशना, पार्श, जैन, कोई डाउट है? नो सर। ओके नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। मैसेज अच्छे से सोच समझ कर करना है, गलत नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस सर। 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 had how many terms? दिव्यांश लोनिया करेक्ट आंसर, जिया रॉन्ग आंसर है, जिया, यशिता रॉन्ग आंसर, मौलिक रॉन्ग आंसर, दिव्य कोठारी रॉन्ग आंसर, चेतना और यशिता का रॉन्ग। इतना मिस्टेक क्यों कर रहे हो, सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर आया है। फिर से दिव्य गलत लिखो। ओके, फर्स्ट किसका आया करेक्ट आंसर? दिव्यांश। ओके, दिव्यांश और दिव्य कोठारी और यशिता, अभी इन लोगों का सही है। सो दिव्यांश एक्सप्लेन करो। सर देखो 5x स्क्वायर खुद में एक वो है टर्म, और 5x भी टर्म है और 5 भी टर्म है, तो 3 टर्म तो हो गए। यस, ये 1 टर्म, ये आपका 2 टर्म, ये आपका सर क्योंकि इसमें एक स्क्वायर नहीं है।
3 टर्म। सर 5 सर वेरिएबल तो सेम है ना दोनों का? क्या सेम है बताना जरा। 5x देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, अभी आप देखो, आप इसमें से टर्म ले आओ, है ना, टर्म क्या आप फर्स्ट आपका 5x², सेकंड आपका 5x और थर्ड आपका 5। इसमें आप वेरिएबल को देखो, वेरिएबल सेम है या डिफरेंट है। इसमें वेरिएबल क्या हो गया x², इसमें वेरिएबल क्या है x, और इसमें क्या है कुछ 5 कुछ भी नहीं है, वेरिएबल तो नहीं, सिर्फ यस सर, कुछ लिखा ही नहीं है। इसमें आपका ये वेरिएबल x² और इसमें आपका वेरिएबल क्या है x⁴ एंड हियर x⁴ 2। सो अभी आपका वेरिएबल सेम नहीं है, देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर यहाँ 5 को मैं इसे 5 × 1 लिख दूं, ये आपका 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1 को मैं लिख सकता हूँ x⁴। अब आप इसके एक्सपोनेंट पे जाओ बेटा, इसका एक्सपोनेंट पे जाओ, तो एक्सपोनेंट में फर्स्ट में क्या है आपका 2, देखो ये फर्स्ट में क्या है 2, सेकंड में क्या है एक्सपोनेंट 1 और थर्ड में एक्सपोनेंट क्या है 0। एक्सपोनेंट अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3 डिफरेंट एक्सपोनेंट मींस 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। सो आपके पास में यस सर। इसी के लिए टफ हो रहा है क्या ये क्वेश्चन? नो सर, बहुत इजी है। नो सर, इजी है। चलो मैं इस बार सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ना। यस सर। रेडी रहो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x⁴2 प्लस 10x⁴2 प्लस 15x⁴2। So how many times? सर मैंने भेज दिया। दिव्यांश, देशना, यशिता करेक्ट आंसर। मेरा मौलिक का करेक्ट है, मौलिक, दिव्य करेक्ट आंसर। सर अब इतने ऐसे वाले सर क्या ना एक्सप्लेन करेक्ट आना है। ओके, सो किसे एक्सप्लेन करना है इसे बताओ। मेरे को सर, मैं करूंगा। सर कैन आई एक्सप्लेन? 1 मिनट, इसका रॉन्ग आंसर आया। कौन है ये? शशांक का क्या क्या नाम है इसका? बेटा गलत आया शशांक। शासन। शासन। गलत है शासन, आपका आंसर गलत है। और ऋषभ चोपड़ा क्लास में हो तो एक्सप्लेन करो बेटा। ऋषभ चोपड़ा यस सर। एक्सप्लेन करो आप। सर तीनों के वेरिएबल सेम है इसलिए 1 टर्म। यस, वेरी गुड, तीनों के वेरिएबल सेम है। तो सेम वेरिएबल से आपका लाइन टर्म हो गया, तो आप भी आप टर्म को देखो। अब पहले तो आप एक्सप्रेशन को देखो, है ना। एक्सप्रेशन आपका हो रहा 5x² प्लस 10x² प्लस 15x²। ये आपके वेरिएबल x² और x² सेम वेरिएबल है, मींस आपका ये ऐड होगा तो 10 प्लस 5 प्लस 15 30, so 30x²। तो हाउ मेनी टर्म्स मींस 1 टर्म। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा। लास्ट क्वेश्चन, आप रेडी रहो। सर एकदम हार्ड दे। देखो ना सर, इतना भी हार्ड मत देना, सॉल्व कर पाए वैसा। एग्जाम में अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो सोचो एग्जाम आपका आधे घंटे में खत्म हो जाएगा मैथ्स का। यस सर। इतना इजी पेपर बना है सर। इजी तो नहीं है टफ, लेकिन रिवीजन जो मैं करा रहा हूं क्वेश्चन को, अगर उसको करोगे तो आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस 5x प्लस 10। सो हाउ मेनी टाइम्स? आंसर करो। करेक्ट आंसर मौलिक, जिया, सभी का जिया करेक्ट आंसर। देशना, चेतना करेक्ट आंसर। दिव्य कोठारी करेक्ट आंसर। सर मेरा करेक्ट आंसर यशिता। और किसी को राइट मैसेज नहीं करना। ओके, सो नाउ दिव्य कोठारी हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। सर 3। Why there? Because variables are same or different? Different. Variables are डिफरेंट। फर्स्ट में क्या वेरिएबल क्या है x², सेकंड वेरिएबल क्या है x, X.
x to the power 0. 0 है तो 3 different variables, that's why there are 3 terms. Okay, very good. Next question आपका। सर थोड़ा टफ क्वेश्चन तो Yes sir, थोड़ा टफ तो इससे। क्वेश्चन है बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मैं और कितना टफ दूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। uh, 18x equal to 36 plus x. So find the value of x. Find the value of x. देशना रॉन्ग है। करेक्ट। यशिता और दिव्य और एक मिनट कौन है ये? मेरा। चेतना। करेक्ट आंसर इन लोगों का। दिव्य का भी करेक्ट आंसर है सर मेरा। माय आंसर। करेक्ट आंसर। शुभ लोनी। सर कैन आई एक्सप्लेन? ओके सर कैन आई? माय आंसर। सर माय आंसर। ओके दिव्य एक्सप्लेन। यस सर। सर x plus 18 equal to 36। ओके सर तो 18 को वहां लेके जाएंगे तो x equal to 36 minus 18। सर तो x equal to 18। Very good. Now be ready for next question. Yes sir. Next question is 4 plus 5y. This equals 74. So find the value of y. चेतना करेक्ट आंसर। ओके चेतना एक्सप्लेन करो, टाइम नहीं है बेटा। चेतना जल्दी से एक्सप्लेन करो। सर मेरा 74 माइनस 4 कर देंगे अपन। सर 14 है। सर 14 इज इक्वल 70 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 14। ओके थैंक यू, बाय। बाय सर। बाय सर। सर बाय सर। हैव अ नाइस डे सर। बाय सर। बाय बाय सर।